Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, myself Bas Kachu, lecturer Boys Higher Secondary School Kargil. So our today's topic is infertility. Infertility, it also comes this topic under first unit, that is reproduction. So dear students, infertility all over the world, including India, there is a problem of infertility. And what is infertility? That the couple is unable to have a children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी ये क्या चीज़ है कि आपने देखा होगा सोसाइटी में कि शादी होने के बाद भी मियाँ बीवी में यानी बच्चे नहीं होते हैं. यानी क्यों नहीं होते हैं? There are many reasons. So what are the definitions? Especially अगर हम देखेंगे what is definition of this infertility, that is unable of a couple to have children unable of a couple to have children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी दैट वाज कपल में शादी के बाद काफी साल तक बच्चे नहीं होते हैं इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, यानी विदाउट यूजिंग एनी कंट्रासेप्शन उनमें बच्चे नहीं होते हैं. दैट कम्स अंडर इनफर्टिलिटी, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी. इसको बोलते हैं सिंपली इनफर्टिलिटी. दैट इज द अनेबल ऑफ ए कपल्स टू हैव चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. सो व्हाट आर द रीजन? क्या रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? सो देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, सच एज दैट इज फिजिकल हो सकते हैं, इट मे बी कंजेनाइटल, it may be disease, it may be drugs, may be immunological, हो सकते हैं, last that may be psychological. So there are some of the reasons. इसके अलावा भी बहुत सारे reasons हो सकते हैं. It may be physical, there is a physical problems हो सकता है, there was sexual organs में. It may be congenital, there is genetic problems भी हो सकते हैं some sort. इसके अलावा कुछ disease के कारण they are unable to have children. Drugs may be drug addict and all, इसके कारण भी हो सकते हैं infertility. इसके अलावा immunological, there is some immune system problems, immune cells antibodies का production ना होने की वजह से there may be infertility problems. Or psychological problems there is, कि these are some of the reasons, some reasons कि that leads to infertility in a couple. So how can treat this infertility problems? कि couples में इनको कैसे treat करें? So there are specialists that are working in this field. So बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, सच एज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, बहुत सारे जो डाउन्स में जगह में आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, वेयर सच प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड, कि वहां पे ट्रीट करते हैं, कि देखते हैं वहां पे दोनों हस्बैंड वाइफ को लाके वहां पे सैंपल कलेक्ट करके क्या प्रॉब्लम्स है. सो नॉर्मली बहुत सारी केसेस में through corrective treatment these couples can be treated and they have children. But there are some cases, कुछ ऐसे cases होते हैं where such corrective treatment is not possible. वहां पे normal जो डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वहां वो पॉसिबल नहीं हो पाता. So in that cases there is a special techniques आजकल आया हुआ है, and the infertile couples unable to have a children, that techniques are called ART. इसको बोलते हैं ART, that is assisted
reproduction technology. So in couples के लिए now there is a sophisticated technique, modern technique, that is called assisted reproduction technology. So through this assisted reproduction technology, there is possible to have conceive, and the infertile couples have children with speculated times. So there are many techniques comes under assisted reproduction technology. So कौन-कौन से techniques आते हैं, we will see. First we rub this. So there are lots of techniques come under ART, that is assisted reproduction technology, ART जिसको बोलते हैं, assisted reproduction technology, ART. तो बहुत सारे टेक्निक्स इसके अंदर आते हैं. सबसे पहला जो टेक्निक्स कम्स, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इसके अलावा इसके अंदर आता है दैट इज गिफ्ट गैमीट इंट्रा fallopian ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं सिंपली गिफ्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, GIFT, दैट इज गैमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर. इसके अलावा तीसरा जो टेक्निक है ICSI, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको सिंपली बोलते हैं ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. एंड फोर्थ वन इज दैट इज AIT, आर्टिफिशियल insemination technique, that is AIT simply इसको बोलते हैं. So these are the prominent techniques that comes under assisted reproduction technology, जो आजकल यूज हो रहा है to have children in these infertile couples. तो these are some of the prominent one, that is test tube baby program first. Second is gift gamete intrafallopian transfer, इसका full form. Third one is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. And fourth one is artificial insemination technique. तो one by one हम डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे. What are these programs? So it's very important from examination point of view as well as नीट एग्जाम्स में भी इनसे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दोनों जगह आपको बेनिफिट होंगे. तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. सो व्हाट इज दिस? दिस मेथड इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इस पे क्वेश्चंस. व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? दिस मेथड इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशंस के बारे में. सिंपली दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म, विद द फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम, टू फॉर्म a diploid cell, that is zygote. That is simply called fertilization. But fertilization is also two types, that is in vivo fertilization and in vitro fertilization. So normal जो fertilizations होता है, normal जो couples में fertilization होते हैं in vivo means that is inside body. In vivo कहते हैं in natural condition are inside body
female couple, that is called in vivo fertilization. नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मल शादी के बाद, दैट इज जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, दैट्स इन वीवो. इन विट्रो, बट दिस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज इन्वॉल्विंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. की क्या होता है, दैट इज इन आउटसाइड द बॉडी, सॉरी, फर्टिलाइजेशंस आउटसाइड द बॉडी. फर्टिलाइजेशंस आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशंस. कहां पे, दैट इज इन लेबोरेटरी कंडीशंस. इन लेबोरेटरी कंडीशन, दैट इज फर्टिलाइजेशंस इन लेबोरेटरी, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं इन टेक्निक्स में. इस प्रोसेस को बोलते हैं, एग्जाम से पूछते हैं व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन लेबोरेटरी कंडीशंस, यानी लेबोरेटरी में इनका फर्टिलाइजेशंस करते हैं. दैट कम्स अंडर इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस. सो दिस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स मेनली इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज सिंपली टेस्ट ट्यूब बेबी, अगर आपसे पूछे व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, सो क्या होते हैं नॉर्मली इन सम वुमेन नॉर्मल कंसेप्शन इज नॉट पॉसिबल. यानी कुछ वुमेन्स में कंसेप्शन मीन्स दैट इज फर्टिलाइजेशंस नहीं हो पाते. क्यों, बिकॉज बहुत सारे रीजंस होता है. सम केस देयर इज ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट, उनका ओविडक्ट ब्लॉक होता है, या इन सम केसेस देयर इज स्पर्मिसाइडल सेक्रेशन इन देयर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. वहां पे इस तरह के सेक्रेशंस होते हैं जहां पे स्पर्म पहुंचते ही वहां स्पर्म किल हो जाते हैं. स्पर्म सेक्रेशंस यानी स्पर्मिसाइडल सेक्रेशंस जिसको बोलते हैं. इन सम वुमेन्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि जहां पे या तो ब्लॉकेड ओविडक्ट होते हैं, ओविडक्ट ब्लॉक होने की वजह से आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशंस के वहां पे गैमीट फॉर्मेशन के बाद गैमीट फेलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होते हैं कहां पे, यूट्राइन वॉल में. तो वहां पे ब्लॉक होने की वजह से दैट वर्म इज अनेबल टू रीच एट द proper side, that is the in uterus, या there is some cases वहां पे spermicidal secretions होते हैं. spermicidal secretion यानी that secretions कुछ ऐसे acids के secretions होते हैं जिस वजह से sperm वहां पे kill हो जाते हैं and they are unable to reach at the proper side for the fertilizations. that comes under spermicidal secretions. या in some cases ऐसे वुमेन्स भी होते हैं देयर इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ वर्म बनता ही नहीं वहां पे, देयर सम प्रॉब्लम. बट आल्सो प्रॉब्लम्स इन मेल में भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल्स भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेल में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं. दैट इज फीमेल नॉर्मल होते हैं, मेल में प्रॉब्लम्स होते हैं. मेल में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, देयर इज लो स्पर्म काउंट इन मेल. यानी नॉर्मल इजैकुलेशंस में एक प्रॉपर अमाउंट में अराउंड 100 to 200 that was millions of sperms होते हैं per 100 ml of this semen. तो वहां पे इनसे बहुत कम होते हैं, लो स्पर्म काउंट होता है इन सम मेल में, एंड उसकी वजह से दैट स्पर्म इज अनेबल टू रीच एट द प्रॉपर साइड. बिकॉज आपने वहां पे पढ़ा है दैट वाज फर्टिलाइजेशंस में व्हेन देयर इज इंसेमिन दैट वाज कॉपुलेशंस होता है, देयर इज इजैकुलेशंस ऑफ स्पर्म्स होता है. तो वहां पे अराउंड 200 से 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होता है, और उनमें से कुछ ही स्पर्म सक्सेस होते हैं उन फेलोपियन ट्यूब में से फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए, और उनमें भी सिर्फ एक ही स्पर्म सक्सेस होता है फॉर द फर्टिलाइजेशंस. सो आप सोच सकते हो कि मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होने के बावजूद एट लास्ट एक ही स्पर्म सक्सेस होता है फर्टिलाइजेशंस करने के लिए. कहां पे, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब में. सो लो स्पर्म काउंट होने की वजह से दे आर अनेबल टू रीच एट द प्रॉपर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशंस. सो उस वजह से इन भी कभी कभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है इन केस ऑफ मेल में. सो जो भी केसेस होगा, चाहे लो स्पर्म काउंट हो या स्पर्मिसाइडल सेक्रेशन हो, ब्लॉक ओविडक्ट हो, इन सब केसेस में दिस प्रोग्राम्स इज ऑपरेटेड, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी. कि जहां पे क्या करते हैं कि नॉर्मल ओवम जो होता है दैट इज रिमूव इट सर्जिकली फ्रॉम द डोनर फीमेल जिसको बोलते हैं, या कपल्स के जो फीमेल्स होते हैं कपल्स में, उसको बोलते हैं डोनर फीमेल. वहां से सर्जरी के द्वारा उसके ओवम को रिमूव करते हैं विद इन द लेबोरेटरी में, और इसके बाद नॉर्मल सीमेन जो होता है दैट कलेक्ट्स फ्रॉम हर हस्बैंड, या जिसको बोलते हैं डोनर मेल. सो उसको कलेक्ट करते हैं इन द लेबोरेटरी, यानी सिंपली इन द लेबोरेटरी कंडीशंस में एक साइड से आपने ओवम लिया दैट वाज डोनर फीमेल से, और वहां पे एक साइड से उस हस्बैंड से उसकी सीमेन और स्पर्म वहां से लिया उसके हस्बैंड से, जिसको बोलते हैं डोनर
मेल एंड दैट उन दोनों को यहीं पे फर्टिलाइज किया लेबोरेटरी कंडीशंस में. हियर जाइगोट इज फॉर्मेड. फर्टिलाइजेशन के बाद आप जानते हैं दैट इज जाइगोट. और इस जाइगोट को फिर बाद में एम्ब्रियो स्टेज या 8 ब्लास्टोमेर ब्लड स्टेज या एबो 8 ब्लास्टोमेर स्टेज पे फिर बाद में इसको ट्रांसफर करते हैं इस लेबोरेटरी पेट्री डिश से इनटू देयर मदर्स यूट्रस. और मदर यूट्रस में ट्रांसफर होने के बाद वहां पे नॉर्मल इसका डेवलपमेंट होता है और नॉर्मल दैट वाज एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद चाइल्ड यानी वहां पे बनते हैं. नॉर्मली दे गिव बर्थ टू ए नॉर्मल चाइल्ड. तो सच टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इस होल टेक्निक को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. सो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो टेस्ट ट्यूब बेबी की हम लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब में बेबी को ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है. बट व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? दैट इज द चाइल्ड which is conceived in the laboratory. लेबोरेटरी में इसका कंसीव करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं. आफ्टर दैट दे आर ट्रांसफर्ड टू मदर यूट्रस और वहां पे इसका डेवलपमेंट होता है. सच टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इस टेक्निक को सिंपली क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. यानी सिंपली फर्टिलाइजेशन दैट इज इन फर्टिलाइजेशन दैट इज occurred in laboratory. After that the embryo जो होता है grow या nourish जिसको बोलते हैं, nourish in the uterus of female. Such technique is called or known as test tube baby program. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इस टेक्निक को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. सिंपली कि जहां पे दैट इज यानी उसका कंसीव और फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी कंडीशंस में होता है. इसके बाद इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं इनटू मदर यूट्रस. सच टेक्निक और सच child that develops from this technique, that child is known as test tube baby. उस child को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. सिंपली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी से दैट इज यानी कंसीव या फर्टिलाइजेशन जिसका यानी फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ? लेबोरेटरी कंडीशंस में. इसके बाद इसमें और एक प्रोग्राम है दैट इज आम पूछते हैं एग्जाम्स में जिफ्ट. ZIFT जिफ्ट यानी इसका फुल फॉर्म है दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट जिसको बोलते हैं. तो व्हाट इज जिफ्ट एक्चुअली? आफ्टर दैट यहां तक आपको समझ में आया कि दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहां पे हो रहा है. दैट इज यानी ओवम जो लिया दैट वाज सर्जिकली रिमूव किया फ्रॉम डोनर फीमेल से, फिर वहां उसके हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट किया, उसी को लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन किया विद इन द पेट्री डिश और जाइगोट बना. आफ्टर दैट क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है दैट वाज वहां पे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? क्लीवेज होता है. दैट इज द डिवीजन ऑफ जाइगोट. दैट इज द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट होते हैं. एंड जाइगोट बनने के उसका क्लीवेज होने के बाद देयर इज न्यू सेल्स आर फॉर्मेड. यानी आपने वहां पे देखा देयर वाज जाइगोट डिवाइड होके फिर बाद में 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल स्टेज होता है इस तरह का, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल एंड सो ऑन. इफ these new cells or these new cells are known as blastomeres कि आपने वहां पे पढ़ा हुआ है क्लीवेज में, इनको बोलते हैं blastomeres. So if this zygote it below 8 blastomere या below 8 cell stage अगर इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें? If transferred below 8 cell stage transferred in uterus of female, वहां पे जब ट्रांसफर करते हैं below 8 cell stage or 8 blastomere stage, such technique is called
जिफ्ट, उसको बोलते हैं जिफ्ट सिंपली। तो एग्जाम से पूछते हैं व्हाट इज जिफ्ट? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इफ द डेवलपिंग जाइगोट आर डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसके बाद बिलो 8 ब्लास्टोमेर स्टेज पे ट्रांसफर करते हैं, इफ दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्राइन फीमेल यूट्रस बिलो 8 ब्लास्टोमेर स्टेज, सच टेक्निक इज कॉल्ड जिफ्ट। उसको सिंपली क्या बोलते हैं? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर सेकंड जो केस होता है आईयूटी, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी जिसको बोलते हैं सिंपली इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो यहां पे क्या होता है? इफ दिस जाइगोट आर एम्ब्रियो दैट इज ट्रांसफर्ड अबोव 8 ब्लास्टोमेर स्टेज, अगर दैट इज एम्ब्रियो जो वहां पे बनता है क्लीवेज होने के बाद, इफ अबोव 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में ट्रांसफर करता है, किसमें? दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू मदर या फीमेल यूट्रस। अगर अबोव 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में ट्रांसफर करता है, सच टेक्निक इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। उस वक्त उसको क्या बोलते हैं? आईयूटी, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इन दो जो टर्म्स से आप इन चीजों से क्लियर हुआ होगा, दैट कम्स अंडर टेस्ट ट्यूब बेबी, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। सिंपली after fusion of this male and female outside the body, that is in the laboratory conditions, if these zygote undergo cleavage, that is from embryo or blastomeres, if this embryo below 8 blastomere stage transferred to uterine, that was female uterus, that technique is called zift, usko bolte hain zift. And second, IUT, intrauterine transfer, if this embryo above 8 blastomere stage they are transferred to mother uterus, that technique is called IUT, इसको बोलते हैं that is intrauterine transfer, इसको बोलते हैं। So dear students, इससे इस चीज से that आपको क्लियर हुआ होगा about this test tube baby program, that is simply that was conceive or fertilizations in vitro condition outside the body, that is in laboratory, and nourishing in the female uterus, such program or such baby is called test tube baby. So एज ए जनरल आपको ये भी जानना जरूरी है। तो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो चला था, दैट वाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दैट वाज गिवन इन इंग्लैंड। इस प्रोग्राम्स में यानी पहली बार पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी दैट वाज ग्रो हुआ था इन दैट वाज इंग्लैंड में, इसको दैट वाज चला था, एंड दैट इज गर्ल नेम्ड लुइस ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन। तो दिस आर द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दैट अराइज इन द वर्ल्ड। पहली बार जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम चला था इंग्लैंड में, इसको राइज किया था दैट इज गर्ल लुइस जॉय ब्राउन इन अराउंड 25 जुलाई 1978। तो 1978 में फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी राइज हुआ था, दैट इज इन इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद नाउ इस टेक्निक को बहुत सारे कंट्रीज ने अपनाया, फिर अमेरिका में इसका टेस्ट ट्यूब बेबी दैट वाज वहां पे राइज किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में किया, तो बहुत सारे कंट्री। लेकिन इन इंडिया, हमारे जो इंडिया में जो टेस्ट ट्यूब बेबी राइज हुआ था, दैट occurred in that was 6th August 1986। सो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम चला था, उसमें जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी चला दैट वाज राइज हुआ था 6 अगस्त 1986 एट KEM हॉस्पिटल मुंबई, आजकल मुंबई जिसको बोलते हैं मुंबई, केम हॉस्पिटल मुंबई में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी राइज हुआ था 6 अगस्त 1986 में, एंड हर नेम इज दैट इज कुमारी हर्षा। समझाया, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इन दैट वाज चीजों से कि व्हाट आर द टेस्ट ट्यूब बेबी। तो एग्जाम्स में आएंगे, जब आएंगे तो इंशाल्लाह आप इस पे अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच।